and gentlemen, you remember Rahul Gandhi holding that red Samvidhan like this? He was waving it to people. But that same Samvidhan says equality for everyone, no matter whichever caste you belong to, no matter whatever religion you belong to. Then how is it that for the Congress today, it is only and only about the Mussalman vote? And see, this is not a charge anymore. This is not even an allegation. The masks, ladies and gentlemen, is finally off. The pretense is over. Because the Congress party is not even hesitating now to tell us that yes, it is becoming and it has become a Muslim-centric party. You're wondering why? I want to bring up certain images apart from Rahul Gandhi. Now what has happened today is also the beginning of the Mahakumbh, which is a great moment for us as Hindus, as a civilization. But that same Mahakumbh is being targeted today by certain people, by certain netas. And a lot of these netas are netas who have been silent when our faith, when Sanatan faith has been hit out. I want to bring up images, if possible, of that Mahakumbh for you, because that is also what Akhilesh Yadav today has obviously an axe to grind with. He says, Roti zaruri hai, dharam zaruri nahi hai. The same Akhilesh Yadav, who obviously makes no bone of the fact that he is again a Muslim-centric party. So you have Rahul Gandhi, you have leaders like Arvind Kejriwal, Akhilesh Yadav, everyone worried for the Mussalman vote. And that is why they hate the Mahakumbh, that is why they hate Sanatan, that is why they hate Hindu gods. They have absolutely no problem with leaders who are a part of their own party and they hit out at Hindu scriptures. But what Rahul Gandhi is about to do in the next few minutes, ladies and gentlemen, is the clearest proof ever of what Rahul Gandhi and the Congress party's real intentions are. It is a Muslim-centric party and this is the proof. Because out of the 70 constituencies in Delhi, Rahul Gandhi has decided to begin his campaign from a Muslim-centric constituency. There are 70 constituencies in Delhi, but Rahul Gandhi decides to begin his campaign from a seat that has more than 50% Muslims, only and only Muslims. I do not know why. Who decided this for Rahul Gandhi? Was it Rahul himself? And is this the new narrative of the Congress party? Let's bring up our questions, because these are questions today that I hope and wish that Rahul Gandhi answers. Because he as the LOP today needs to be very clear whether it is the Samvidhan that he wants to follow or is it about the Congress Mussalman First Party. And why has the Mahakumbh of Hindu unity got Rahul Gandhi's Congress and Akhilesh Yadav Samajwadi Party literally unnerved? Why are they so scared? Why are they panicking that Hindus have gotten together for this Mahakumbh? I wonder why. Why has Rahul Gandhi now decided to begin his campaign from a seat, like I just said, that has the largest number of Muslims? Not Hindus, but Muslims. In Delhi, remember, there are 12% Muslims and the rest of the constituencies are Hindu-dominated seats. But Rahul Gandhi decides to begin his campaign from a seat, that is Seelampur, that has more than 50% Muslims. And I stress this again and again because this is a hard reality that the Congress will have to respond to. Is Rahul Gandhi then, ladies and gentlemen, the new Masiha for Muslims? Is he now giving a competition to leaders like Assaduddin Owaisi? Who knows? Maybe. Arvind Kejriwal definitely is running scared. This brings us to our next question now that's up on your screens. Is Rahul Gandhi's politics now largely of appeasement of the Muslims? And remember, when you appease a particular category, when you appease a particular religion, you obviously alienate the others, that is the Hindus. And that is why leaders like Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav had absolutely no problem when Sanatan was compared with dengue and malaria. You remember this? Rahul Gandhi said not a word. He did not snap his alliance with the DMK, the same party that harbors people of Sanatan hate. So as we bring up all these questions, it's also important again to remember time and again that Rahul Gandhi should know that appeasement has its limits. So how far is the Congress going to go to appease Muslims at the cost of alienating the Hindus? Let's quickly say good evening to our panel of guests. Joining us, we have Sharad Trivedi, who represents the BJP on the show. Acharya Vikramaditya is a spiritual guru. We also have Nikul Patel, who's representing the Congress. Akhilesh Katiyarji is representing the Samajwadi Party. Mumtaz Alam Rizvi is a political analyst. And let's begin
with Parvinder Singh Sethi ji, who's also a political analyst. Nikul, I can't see Nikul though on our screens yet, but Akhilesh is there. Akhilesh Katyal ji, आप समाजवादी पार्टी को represent करते हैं. मुझे बताइए सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि रोटी जरूरी है, धर्म बाद में आ जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की बात है ना. संभल में आप लोग जाते हैं, संभल में आप लोग कहते हैं कि जानबूझकर माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है. राहुल गांधी अपने कैंपेन की शुरुआत करना चाहते हैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट से. सर, क्या यही नया सेक्युलरिज्म है आप लोगों का? नहीं, मैं आपसे आपकी बात जो शुरू की है, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती. कोई हिंदू तुष्टीकरण की बात करे, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करे, हम सब लोग संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, किसी धर्म के प्रति नहीं. हमारी राजनीतिक हमारी जो कमिटमेंट है भारतीय राजनीति को, वो भारत के संविधान को है, किसी धर्म को नहीं. इसीलिए भारत का संविधान कहता है कि भारत एक अखिलेश जी, आपसे चेक करती हूँ, इस संविधान में हिंदूज आते या नहीं आते? हिंदूज की कोई राइट्स है या नहीं है? हिंदू लाइव्स मैटर करती है या नहीं करती है? या आप सारी लड़ाई आप लोगों की मुसलमान वोट की है? चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे निकुल पटेल की कांग्रेस हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, आप सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट के लिए लड़ रहे हैं. नहीं, इससे पहले सवाल यह है कि भारत के दलित को और पिछड़ों को हिंदू माना जाता है कि नहीं? ये हिंदू माने जाते हैं कि नहीं? क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी को अछूत कहा जाता है, तब क्या हम हिंदू नहीं होते? हमें इस बात पे भी तो जवाब चाहिए. कमाल हम लोगों को इस देश कमाल है, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल. अंग्रेज चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल करेंगे निकुल पटेल, ओनली देन द कांग्रेस विल सर्वाइव. Now, can you tell me, out of the 70 seats, 70 constituencies in Delhi, Nikul, why did Rahul Gandhi decide to begin his campaign from a seat that has more than 53% minorities? और कोई सीट नहीं मिली आपको? See, Delhi mein, the people who used to stay in Delhi are not the citizen of the country first. Secondly, it is not the constituency of the Delhi, and thirdly, how you feel that we are doing an appeasement politics, that is your perception and your thought process. No, what is your thought process? We are very clear. What is your thought process, Nikul? Our thought process is very clear. Nikul, wait. Rahul Gandhi begins his campaign in Delhi from a Muslim-dominated seat. He could have gone to any other seat. 69 more constituencies are there in Delhi. Can you tell me, why did Rahul Gandhi decide to campaign from a Muslim-dominated seat? I think during the Lok Sabha he started his campaign from Dahod. It is a Adivasi dominated area. So everyone is important for us. And suppose you are telling 53, then 47% are Hindu voters there, as per your statement and your figures that you are quoting right now. So you cannot say that 50% population and you are bifurcating in the name of Hindu and Muslim. And Bharatiya Janata Party. Nikul Patel, the entire Delhi, if you look at this, has a 12% Muslim population. And Rahul Gandhi goes to a seat to campaign that has 53% Muslims. And you're teaching me that this is your secularism. Accept the fact, Nikul, that this is your secularism. यही आपका संविधान है. अरे हमारा संविधान जो है बहुत बढ़िया है. आपका संविधान गलत है. आप जो सोचते वो गलत है. आपका सवाल गलत है. सवाल गलत है. हमारा सवाल ही गलत है. गलत है तो गलत है. सवाल ही गलत है. तो अखिलेश यादव से कोई सवाल ना पूछे, राहुल गांधी से कोई सवाल ना पूछे. हम तो बता रहे हैं. उनसे ना पूछे कि आप खाली संविधान लेकर जाते हैं. उनसे ना पूछे कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं, विक्रमादित्य जी. और महाकुंभ को लेकर कहा जाता है कि रोटी जरूरी है, धर्म की बात बाद में करिएगा. वो जरूरी नहीं है इस समय. विक्रमादित्य जी, नहीं, आज पाप पुण्य रोटी की बात जिनको याद आ रही है उनसे पूछिए. जब हज हाउस बना रहे थे तब क्या था? हज हाउस बनाते वक्त इनको याद नहीं आई? हज हाउस करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई? मुझे आज बात कर रहे हैं कि भारत जो हिंदू है, जो वहां कुंभ में जा रहा है, पाप को धोने जा रहा है, जो हज जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? मैंने अभी एआई पे एक प्रश्न डाला था, मुझे तो पता नहीं क्या लिखा होता है इनके धर्म में, लेकिन एआई ने मुझे बताया कि लोग जाते हैं हज के लिए पुण्य, अपने पापों को काटने के लिए ही. अब इनसे पूछ लीजिए क्या हज पे भी ये बोलेंगे इस बात को, जो सेंटेंस आज ये बोला गया है कि हज पे भी ये बोलेंगे कि हज में भी पाप घटाने के लिए जाने के लिए हमें जरूरत नहीं है. तो आज सत्य वास्तविक तौर पर समझ में आ रहा है. और जिस प्रकार से ए.के. एंटनी साहब का आपको याद होगा कि जो कांग्रेस जो है वो केवल क्या पार्टी बन गई है. उन्होंने साफ साफ तौर पर बताया था
कि जो सर्वे करने के बाद उन्होंने देखा था कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल है वो लगातार 2000 पहले से ही चल रहा था, 2012 में खुल के सामने आ गया था और आज वही किया जा रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा जो बिगड़ा, बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, कुछ चांसेस बन जाए कि मुस्लिम शायद वापस आ जाए और इस देश के अंदर बाकी लोगों के पेट में दर्द हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो चल रहा था पूरा एक होके चलेंगे, इंडिया एक लेके इंडिया अलायंस जो चल रहा था उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, पूरी तरह से। मुझे तो नाम भी बड़ा विचित्र लगा कि इन्होंने भारत का नाम रखा और उसको खंड खंड करने का जो स्थिति है, जो इनकी मंशा है वो सामने दिखाई दे दी, उस नाम को भी खंड खंड कर दिया है। उस नाम को भी मुझे ये समझ नहीं आता, आचार्य विक्रमादित्य जी और शरद जी इस पर जवाब देंगे, पहले परमिंदर सेठी जी आएंगे कि देखिए अगर आप लोग सब कहते हैं कि एक है तो सेफ है, आप लोग हिंदूज को एक साथ करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो वो भी तो सही बात है ना, आप लोग कहते हैं वो भी सही बात है। ऐसे ये लोग अगर कहे कि मुसलमान एक साथ हो जाए तो आप लोगों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? इनका अपना पॉलिटिक्स है, आपका अपना पॉलिटिक्स है, उनका अपना वोट बैंक है। परमिंदर सिंह जी, सेठी जी, अब मुझे ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी की तरफ लीन करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी तो फंस चुकी है, क्योंकि कहीं निकुल पटेल और उनकी कांग्रेस और कहीं राहुल गांधी का ये जो सीलमपुर का मुसलमान वाला दौरा है, अगर वो काम कर गया तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। नहीं, देखिए, हर एक चीज को एक धार्मिक एंगल देना राजनीति के अंदर ये ठीक नहीं है। अच्छा। अगर राहुल गांधी को क्या दिल्ली में एक ही सीट चाहिए? मुझे एक बात चाहिए, राहुल गांधी को दिल्ली में एक ही सीट चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें पूरे संसार के अंदर जो राजनीति होती है ना, मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होती है, डेवलपमेंट के आधार पर होती है, जो एजुकेशन के नाम पर होती है, हेल्थ के नाम पर होती है, जो आम आदमी पार्टी करती है। बाकी लोग अच्छा, तो आप जब पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देते हैं, ये किस तरह का विकास है? ये कौन सा डेवलपमेंट है, बताइए मुझे। आप खुद रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स करें तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस करे तो आप कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो धर्म है ना वो एक पर्सनल मैटर है। अगर मान लीजिए कुंभ है, बड़ी उत्सुकता से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मनाया जा रहा है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ये राजनीति का, अगर दिल्ली के अंदर चुनाव है तो चुनाव के अंदर चीजें दी गई हैं, और आम आदमी का तो शुरू से ये है, जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी गई है, महिलाओं को सम्मान योजना के लिए। अच्छा, आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, आपको मुसलमान वोट चाहिए नहीं चाहिए, ये बताइए, खुल के बताइए। हमें देखिए, हम तो मानवता को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है ना, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। हम इंसान को मानते हैं। जो धर्म है वो एक बड़ा एक पर्सनल मैटर है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तभी तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अरविंद केजरीवाल, कैमरास लेकर जाएंगे, याद है ना आपको? नहीं, उनका पर्सनल मैटर है, उनकी। अच्छा, वो पर्सनल मैटर है, लेकिन वो कैमरास लेके जाएंगे। बट शरद, you know, why should the BJP have a problem with this? And like I said, if the BJP wants to consolidate all Hindus and you believe that that is your vote bank, the Congress believes that the Mussalman is their vote bank. Let them consolidate it. No, first of all, I would like to wish all your viewers on happy Lodi, and on the eve of Makar Sankranti also I want to give my best wishes. I want to say one thing, that this is the largest congregation in human history. Never before it has happened like this. And the foreigners are also coming, the Christians are coming, and the Muslims are also coming. Steve Jobs, whose wife has come, Steve Jobs' mother was Syrian Muslim and his father was Christian. So even foreigners, Christians, Muslims, every community is coming. This is the first time it has happened. So obviously the entire secular front goes into hiccups. Now the problem with the secular front is that Muslims have already left them. Hindus have already left them. Now they are trying to find some way out to get into this secular vote. It is not Muslims. I am very categorically saying it has nothing to do with Muslims. Muslims are with us, and we have never said that the Hindus are our vote bank or the Muslims are our vote bank. Who says Sonia ke aansu? It is Sonia, not a Muslim. Nobody has said that Hafiz Sahab or Osama bin Laden ji. It is Digvijay Singh ji who has said it. Gopal Italia, the boss of Aam Aadmi Party in Gujarat, said that जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं. So this is all hunt for the secular vote. It is not the Muslim vote. It is the secular vote. But you know, Sharad, you would also appreciate there are tons of leaders from the BJP and from your allies who have said कि मुसलमान हमें वोट ही नहीं देते, तो क्यों इनके बारे में बात करें?
So, clearly you must also look within. But let me also get in another of our guests who's just joined us. Dr. Mumtaz Alam Rizvi is a political analyst. मुमताज जी, आप लेट आए हैं सर इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, इस डिबेट पे। देखिए कांग्रेस तो बाजी मार रही है ना, उनको लगता है कि मुसलमान एक साथ हो गए और उनको वोट दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव परेशान हो जाए, अरविंद केजरीवाल परेशान हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी ने ये डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी बन गई है। नहीं, मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल गलत है, और मुसलमानों को किसी खास पार्टी का बना देना ये भी गलत है। ये ठीक नहीं है। और मेरा तो यही कहना है कि मुसलमान अपोजिशन नहीं है इस देश में, और मुसलमान किसी खास पार्टी के नहीं। मुसलमान भी तमाम वोटरों की तरह आजाद है। वो चाहे तो आम आदमी पार्टी को दे, चाहे तो वो और बीजेपी को दे, किसी को दे। इसलिए ये कहना कि वो कांग्रेस के पॉकेट में जा रहा है, कांग्रेस का वो बन गया, भाई क्यों? कांग्रेस ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? भाई 3 पॉकेट है दिल्ली में। पुरानी दिल्ली है, आप जमुना पार सीलमपुर का इलाका देख लीजिए, और ओखला का, तीनों ब्लैक लिस्टेड है। न तो कांग्रेस के दौर में ठीक हुआ, न तो आम आदमी के दौर में ठीक हुआ। तो ये शिकायत है। हाँ, ये जरूर है कि एक ऑप्शन देखा जाता है, क्योंकि केजरीवाल ने बड़ी गलतियां की। केजरीवाल ने तमाम जो माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट, चाहे उर्दू एकेडमी हो, वो तकरीबन आखिरी सांस ले रही है। इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशन है, कैसे कैसे लोग वहां बिठा दिए। क्योंकि आप देखिए ना, तो नहीं अब मुमताज जी, अरविंद केजरीवाल तो चाहते हैं, और सेठी साहब इस बात को मानेंगे भी, कि वो तो चुनावी हिंदू है ना, वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। अब राहुल गांधी भी टेम्पल हॉपिंग करते हैं, अब उससे उनको कितना फायदा नुकसान होता है मुझे नहीं पता। बट निकुल, does this mean that अब आपको हिंदू वोट चाहिए ही नहीं? You do not need the Hindu vote. Rahul Gandhi has had no time to go to the Ram Mandir. He has no problems with the DMK calling for Sanatan being compared to dengue, malaria. He has no problems with Akhilesh Yadav saying कि रोटी जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है. Rahul Gandhi has a stand or no stand on all this? See, Rahul Gandhi ji is very clear on his stand that he wants to work for the people of the country, and the statement from Bharatiya Janata Party that we are only targeting certain sectors, and it is, I would like to deny it. Secondly, in Lok Sabha also, if you see the percentage of voting that we got is not only a particular religion, but you can see it's an overall vote that the people of the country had given to Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi is today leader of opposition, which is a strong, we can say that candidate for the against the why Bharatiya did Janata Akhilesh Party. Yadav, Mamta Banerjee, Arvind Kejriwal, even an Omar Abdullah today hate him? They say Rahul Gandhi is spreading lies. You're laughing about this? It's become a joke for the Congress? Rahul Gandhi ji is very clear in his thought process and how he wants to work. Everybody knows how present the point on the Lok Sabha, and now he is in the Delhi elections. We purely believe that under his leadership we will definitely able to grow, and Delhi is How going many to seats vote will you Rahul get? Gandhi ji. How many Muslim seats will you get? Can you tell me out of the 8 seats कितनी मिलेंगी आप लोगों को? Why are you only talking of Muslim seats? I don't understand. Because your question Rahul is Gandhi not begins correct. his campaign from a Muslim-dominated seat, Nikul Patel. Can you give me one good reason why he decides to do this? He could have begun his campaign from the New Delhi constituency. He could have gone to Greater Kailash. He could have gone to Kalkaji. No, but he goes to a Muslim-dominated seat, Nikul. Little bit you can say that वो द्वेष भावना के साथ होती है, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। क्या किसका द्वेष है? किसका द्वेष? अरविंद केजरीवाल का द्वेष? हमारे साथ द्वेष है ऐसा लग रहा है आपकी क्वेश्चनिंग से। अरे बताइए, आप खुद डिसाइड करते हैं निकोल। Out of 70 seats, what you will be under the leadership of Rahul Gandhi? हाँ। But you are asking about only 8 seats. That is very we can say that pathetic. अरे Rahul Gandhi decides to begin his campaign from a Muslim-dominated seat. That is not pathetic. That is not pathetic by your standards. 50% vote share is Hindu and 50% vote share is Muslim. How can you say that it is only a Muslim-dominated area? That is your thought process and correct, not correct. You like kindly. अरे come on, you can keep putting wool over people's eyes. सेठी साहब, आप निकुल को बताएंगे सर, ये मुसलमान वोट आपको भी चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, या तो आप लोग साथ आ जाइए। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को पहले क्लियर मैंडेट मिलता है, 68 सीट मिलती है, फिर 62 सीट मिलती है। उनको दिल्ली का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनको चाहते हैं और उनको वोट करते हैं। अगर आप उनको मुस्लिम में बांटे या हिंदू, जो 62 सीट्स आई हैं वो क्या मुसलमान की सीट्स हैं? क्या वो हिंदू नहीं है?
अरे आपने कांग्रेस का वोट बैंक ले लिया, अब कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस लेना चाहती है ना सर, सिंपल सी बात है। अब देखिए मिल्कीपुर में चुनाव आ रहा है, मिल्कीपुर में चुनाव आ रहा है, कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया वो एसपी को सपोर्ट करेंगे। नहीं सुनिए सुनिए, अब हर सीट का अपना समीकरण है ना। अब अखिलेश कटियार जी, व्हाई यू सो क्वाइट? अखिलेश कटियार जी, कैन यू टेल मी कि अगर सारा मुसलमान वोट राहुल गांधी ले जाएंगे तो अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे 2027 का चुनाव आगे? नहीं, अयोध्या में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास व्यक्त करके वोट दिया है, वो सारे मुसलमान तो नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 40 से भी नीचे सीटों पे आके बीजेपी खड़ी हो गई, तो क्या हिंदू समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया सपा को? क्या हिंदू समाज के लोग नेता नहीं मानते अखिलेश यादव जी को? तीसरी बात दीप्ति जी, तो आपने 3 बार कहा कि जो रोटी का सवाल जनता के ऊपर मत डालिए। अखिलेश यादव अपने आप को हिंदुओं का नेता मानते हैं, ये तो वो डिसाइड करेंगे ना सर। नहीं, वो भारत का नेता मानते हैं, हिंदुओं का नहीं, भारत के नेता है वो, सभी जात धर्म के नेता है। और इस देश में दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया है। हाँ। ये जुबान हमें संविधान ने दी है। और रोटी निश्चित तौर पे धर्म से ज्यादा जरूरी है। तो अखिलेश जी, बिफोर आई गेट इन मुमताज एंड शरद जी बैक इनटू द कन्वर्सेशन, मुझे ये बताइए कि महाकुंभ में कब जाएंगे अखिलेश यादव? महाकुंभ में कब जाएंगे? ये सवाल ये मेरे नेता का है, वो कब जाएंगे। अब आप इसी तरीके से ये जो आयोजन है ना कि जब राम मंदिर था तो देश का नहीं, हिंदू धर्म का नहीं, भाजपा का आयोजन हो जाता है और उसको लेके कार्ड बांटना। सर अखिलेश यादव राम मंदिर गए, पूरे भारत के लोगों का है, इसमें क्यों लोग कार्ड बांटते घूम रहे, इनवाइट करते घूम रहे भाई? अरे ये तो आस्था की बात है सर, इसमें क्या इन्विटेशन की बात है? आप दिल से अगर चाहेंगे, नेताजी ने अगर कोई चुनावी हिंदू नहीं है, अगर कोई चुनावी हिंदू नहीं है और उसको लगता है कि रोटी और धर्म में वाकई में इस तरह का एक कंपैरिजन हो सकता है, तो आपको मुबारक हो इस तरह की राजनीति। बट विक्रमादित्य जी, अब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाते, महाकुंभ जाएंगे नहीं जाएंगे हमें नहीं पता, बट ये सब इतना क्यों मैटर करना चाहिए? आज की राजनीति में क्या लोगों को पता नहीं है कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है? सबको पता है कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है और कौन किसको किस प्रकार से ब्रेन वॉश करना चाह रहा है, सबको पता है। अखिलेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे, उन्होंने पिताजी की मूर्ति जरूर वहां लगवा दी। खैर उन्होंने उसका कुंभ से स्नान नहीं करवाया, कम से कम वहां मूर्ति लगवा दी थी, प्रतिष्ठा करवा दी, तो कम से कम 10 घड़े स्नान जरूर करा देते, कम से कम भारतीय संस्कृति का एक बात पूरी हो जाती। वो नहीं कराएंगे क्योंकि खेल चल रहा है, जो खेल वास्तविक तौर पर दिखाने का खेल है, ये जो स्थिति चल रही है बड़ी विचित्र दिखाई देती है। इनसे पूछ लीजिए, समाजवादी प्रवक्ता बैठे हैं, फोटो तो लगवा दी, मूर्ति तो वहां लगवा दी है। अगर आपने मूर्ति लगवाई है तो उनको जल स्नान भी करा दीजिए भाई, जल स्नान करा दीजिए, पुण्य मिलेगा। भारत सनातनी संस्कृति का देखिए, जो लोग रोटी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो मूर्ति भी लगवाते हैं ना अखिलेश जी। समय थोड़ा कम है, बट मुमताज जी 5 सेकंड में मुझे बताइए ये क्या खेल चल रहा है राहुल गांधी का और मुसलमान वोटों का? 5 सेकंड सर। देखिए मेरे ख्याल से कोई खेल नहीं चल रहा है, लेकिन चूंकि मुसलमान केजरीवाल से नाराज है और बीजेपी से तो वो नाराज रहता ही है, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि मुसलमान हमारी तरफ आता है और जहां उम्मीद होती है वहां लोग जाते हैं, अच्छा करे। मुसलमान तो हिंदू अपीजमेंट करना है और केजरीवाल भी उसी लाइन पे चलते हैं, तो फिर कांग्रेस बचती है, इसलिए लोगों को लग रहा है। लेकिन हर पार्टी को सारे वोट चाहिए, लेकिन ये है कि मुसलमान चाहिए, मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर कोई नहीं बोलता। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। Okay. Apologies, Sharad ji, I've run out of time. But Nicole, we will find out what Rahul Gandhi says when he's out there campaigning on a Muslim-dominated seat. And whether Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi go to the Mahakumbh, whether they go to the Ram Mandir, we are tracking that story. I'm thanking all gentlemen for joining us. We are into a quick break.